નમસ્કાર દોસ્તો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ પર। મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયની જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 આવી રહી છે તેનો જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણે આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 8ની અત્યાર સુધીની જેટલી પણ ધોરણ 8ની આ જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા છે તેના દરેક વિષયના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો। ધોરણ 8ના દરેક વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર તમને મળી જશે, અથવા તો આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જોડાઈ જજો, જ્યાં પણ તમને આ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025ના દરેક વિષયના પ્રશ્નપત્રના વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને નિયમિત રીતે મળતી રહેશે। ચાલો દોસ્તો, તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા। કુલ 80 ગુણનું પ્રશ્નપત્ર, સમય હોય છે તેનો 3 કલાક। એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 સही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, જેના કુલ 4 માર્ક છે। પહેલો સવાલ, कच्छ के कौन से गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, बीदड़ा। बीजो सवाल, कच्छ की यात्रा कहाँ से पूर्ण होती है? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, अंजार। ત્રીજો સવાલ, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो जवाब आवश्य विकल्प डी, ईश्वर। चौथो सवाल, उजियाला कहाँ बंदी है? तो जवाब आवश्य विकल्प सी, महल। पांचवा सवाल, भारत में 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो जवाब आवश्य विकल्प बी, शंकर दयाल शर्मा। मित्रों, धोरण 3 થી 8ની આજે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 આવી રહી છે તે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025 માટે ખાસ ઉપયોગી એવા મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર આપણે તૈયાર કરેલા છે, અને આ પ્રશ્નપત્ર છે રેડી ટુ પ્રિન્ટ ફોર્મની અંદર તમને મળી જશે, એટલે કે સીધી ઝેરોક્સ કરાવી અને બાળકોને પ્રેક્ટિસ માટે તમે આપી શકો છો। અને સાથે સાથે સોલ્યુશન જે છે એ પણ એની ઉપલબ્ધ છે, અને આ માત્ર તમને 20 રૂપિયાની અંદર એક વિષયનું પ્રશ્નપત્ર જે છે તે સોલ્યુશન સાથે રેડી ટુ પ્રિન્ટ ફોર્મમાં મળી જશે। સાથે સાથે વધારે તૈયારી માટે આપણે આઈએમપી જે અસાઇનમેન્ટ છે તે પણ તૈયાર કરેલું છે, અને અસાઇનમેન્ટ પણ રેડી ટુ પ્રિન્ટ ફોર્મમાં તમને મળી જશે। એક વિષયની કિંમત માત્ર 40 રૂપિયા છે, જે તમારી આ દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે, તો દરેક વિદ્યાર્થીઓએ અવશ્ય મેળવી લેવા। આ ઉપરાંત આપણે જોઈએ તો બ્રાન્ડિંગ, તો આપણી શાળાના એટલે કે તમારી શાળાના ક્લાસીસના કે સંસ્થાના નામ અથવા તો લોગો સાથે જો તમે આ પ્રશ્નપત્ર પ્રિન્ટ કરાવવા માંગતા હોય તો પણ એ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જેની કિંમત પણ માત્ર 20 રૂપિયા છે। તો આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર અને મટીરિયલનો અભ્યાસ અવશ્ય કરી લેજો। દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાની તૈયારી માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે, સારામાં સારા માર્ક્સ તમે મેળવી શકશો। અને આ પ્રશ્નપત્ર અથવા તો અસાઇનમેન્ટ મેળવવા માટે અહીંયા તમને નંબર આપેલો છે 70 46 22 22 54, આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને આ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો તમારા વોટ્સઅપ નંબર ઉપર, તો અવશ્ય દરેક વિદ્યાર્થીઓએ મેળવી લેવું। ત્યાર પછી છે બી, प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। पहला सवाल, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो जवाब आवश्य चट्टान का अर्थ है वे लोग जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं। हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। बीजो सवाल, कच्छ के रेगिस्तान के कितने भाग हैं, कौन कौन से? तो कच्छ में 2 रेगिस्तान है, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। इनमें रेत नहीं पाई जाती, इसलिए ये अपने तरह के अनूठे रेगिस्तान है। त्रीजो सवाल, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? तो प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभाल कर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उन्हें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उसके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके यही गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। चौथा सवाल, बिना सोच कार्य करने से क्या होता है? तो जवाब आवश्यक है सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमानी है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है, कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है, लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ता है। पांचवा सवाल, रहीम बड़े लोगों की क्या विशेषता बताते हैं? तो जवाब आवश्यक है रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाना उनके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित काव्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ચાલો, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કાવ્ય આપવામાં આવેલું છે, તો આ કાવ્યને તમારે ધ્યાનપૂર્વક વાંચવાનું છે, સમજવાનું છે, અને ત્યાર પછી જોઈએ એમના ઉપરથી પહેલો સવાલ, समंदर के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो मोती, जल इत्यादि।
बीजो सवाल, बाबा कौन सा सच कहते थे? तो बाबा यह सच कहते थे कि भीतर और बाहर में समानता होनी चाहिए, यानी जो हम अंदर है वही बाहर भी दिखना चाहिए। ત્યાર પછી ત્રીજો સવાલ, मोती वाली खेती तुझ में कैसे होती, ऐसा क्यों कहा गया है? मोती शंखों के अंदर बनते हैं, यह शंखों को खेत और मोतियों की फसल मानकर किया गया है। इस प्रकार समंदर को मोतियों का उत्पादक माना गया है। झूठ शब्द का विरुद्धार्थी शब्द काव्य में से ढूंढ कर लिखिए। तो झूठનું વિરુદ્ધાર્થી થશે સચ। पांचमું, इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो इस काव्य का उचित शीर्षक समंदर की गहराई या समंदर के रहस्य हो सकता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 3, રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લીખીએ, જેના કુલ 6 માર્ક્સ છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, મુદ્દાઓને આધારે આપણે કહાની લખવાની છે। જો चित्रकार की चतुराई, तो एक चित्रकार था, उसका नाम राजा था। वह प्राकृतिक दृश्यों के चित्र बनाने का शौकीन था। वह अक्सर जंगलों में जाकर वहां के दृश्यों को कैनवास पर उतारता था। एक दिन राजा जंगल में घूम रहा था। वह एक खूबसूरत झील के किनारे बैठा था और झील का चित्र बना रहा था। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर राजा की तरफ बढ़ रहा था। राजा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह अपने डर पर काबू पाते हुए शेर की तरफ बढ़ा। शेर राजा के करीब आया और गुर्राया। राजा ने हिम्मत करके शेर से कहा, आपका चित्र बना दूं? शेर राज की बात सुनकर चौंक गया। वह राज को घूरने लगा। राज ने शेर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं एक चित्रकार हूँ, मैं आपकी खूबसूरती को कैनवास पर उतारना चाहता हूँ। शेर राजा की बात सुनकर थोड़ा शांत हो गया। उसने राज को अनुमति दे दी। राज ने शेर का चित्र बनाना शुरू कर दिया। वह बहुत ध्यान से शेर का चित्र बना रहा था। शेर भी राजा की कला की प्रशंसा कर रहा था। कुछ देर के बाद वह शेर से बोला, महाराज, आपके अगले भाग का चित्र तो बन गया, अब आप मुंह उधर करके बैठ जाइए तो मैं आपके पिछले हिस्से का भी चित्र बना दूं। अपने पूरे शरीर का चित्र बनवाने के लालच में शेर पीछे की ओर मुंह करके बैठ गया। चित्रकार को काफ़ी समय लगता है, देख आंखें बंद करके सुस्ताने लगा। चित्रकार तो इसी मौके की ताक में था। उसने चित्र बनाने का अपना सारा सामान समेटा और चुपके से वहां से 9-2-11 हो गया। इस प्रकार चतुराई से चित्रकार ने अपनी जान बचा ली। सीखा उसे कि चतुराई का काम किया जाए तो संकट को टाला जा सकता है। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 4, નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का માતૃભાષા में अनुवाद कीजिए, જેના કુલ 4 માર્ક્સ છે। તો મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એક પેરેગ્રાફ આપવામાં આવેલો છે। આ પેરેગ્રાફને આપણે માતૃભાષામાં अनुवाद કરવાનો છે। જો દેશ પ્રત્યે આપણું સૌથી મોટું કર્તવ્ય એ છે કે તેને પૂરા દિલથી સેવા કરવી અને હંમેશા તેના કલ્યાણનો વિચાર કરવો, કારણ કે આપણા જીવનની સફળતા દેશની સેવામાં બધું જ આપી દેવામાં છે। દેશને મુશ્કેલીમાં જોઈને કોઈના જીવનની પરવા કર્યા વિના દેશ સેવામાં લાગી જવું જોઈએ। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए काव्य को पूर्ण करके लिखिए। तो मेरी प्यारी गाय, मेरी दुलारी गाय, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 6, दिए गए शब्दों के उत्तर मिले, ऐसी पहली बनाकर लिखिए। बादल। तो जो 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल बन जाऊं, अंत कटे तो बाद बन जाऊं, मध्य कटे तो बाल बनूं मैं, कर लो तुम सब मुझको याद। ત્યાર પછી दीपक। तो आ रीते आवशे, सूरज को दीपक दिखाना, रहता हूँ मैं गोल सी दुनिया के अंदर, दिखता हूँ मैं काला, रहता हूँ मैं लाल समुंदर में, है हिम्मत तो सुझाओ पहली। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 7, प्रवास में जाने की अनुमति लेने के लिए अपने पिता को पत्र लिखिए, જેના કુલ 5 માર્ક્સ છે। तो જોઈએ આપણે પત્ર। विकास हाईस्कूल अहमदाबाद, दिनांक पूज्य प्रिय पिताजी, सप्रेम नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ और खुशहाल होंगे। मैं इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करना चाहता हूं कि मुझे आगामी सप्ताह में एक शैक्षणिक यात्रा पर जाने का अवसर मिला है। इस यात्रा का आयोजन मेरे स्कूल द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य हमें विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना है। यह यात्रा मेरे अध्ययन के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी रहेगी। यात्रा की तिथियां 20 फरवरी से 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है और इसमें हमारे स्कूल के शिक्षक और छात्र शामिल होंगे। यात्रा का स्थान दिल्ली और आगरा है। मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और यह मेरे ज्ञान को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध होगा। आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं यात्रा के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करूंगा और सुरक्षा के सभी उपायों का ध्यान रखूंगा। कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें ताकि मैं इस यात्रा का हिस्सा बन सकूं। आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आपका पुत्र मित। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 8, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का भावार्थ लिखिए। तो जो અહીંયા આપણને કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે, મંદિર મસ્જિદ गिरजाघर ने बाट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाता मट बाटो इंसान को।
तो જોઈએ એમનો उत्तर। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 9। નીચે दी गई परिस्थिति में आप क्या करेंगे, इसके बारे में लिखिए, જેના कुल 4 मार्क्स है। तो જોઈએ पहलो सवाल। रास्ते पर चलते हुए आपको किसी का बटुआ मिल जाए तो आप क्या करेंगे। જોઈએ उत्तर। अगर मुझे रुपयों से भरा बटुआ मिल जाए तो मैं कतई नहीं समझूंगा कि मुझे धन मिल गया और मैं इसका मालिक हो गया। यह सोच बहुत गलत है। जिस व्यक्ति का यह बटुआ होगा वो बहुत ही दुखी होगा, इसलिए मैं उसे ढूंढ कर देने का प्रयत्न करूंगा। तेना अथवा आपने आपेलू है, आप गांव के सरपंच है और अचानक गांव में बाढ़ आ जाए तो आप गांव वालों की सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे। જોઈએ उत्तर। मेरे गांव में बाढ़ आ जाए तो मैं अपने गांव में ही रहूंगा और अपनी यथाशक्ति गांव के लोगों की मदद करूंगा। गांव पर आपत्ति आने पर गांव छोड़कर भागना तो कायरता है। आपत्ति के समय अपने गांव वालों की मदद करना हमारा कर्तव्य है। मैं अपने गांव वालों, पड़ोसियों और मित्रों के परिवार की हर तरह से सहायता करूंगा। मैं यथाशक्ति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयत्न करूंगा। उस समय यही मेरा धर्म होगा और मैं साहसपूर्वक इस धर्म का पूरी तरह से पालन करूंगा। प्रश्न नंबर 10 ए। निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्षमता, तो एनो समानार्थी थशे बल। वाक्य आवशे राजा की क्षमता से ही सारा राज्य सुखी था। अभिलाषा, तो एनो समानार्थी थशे इच्छा। वाक्य बनशे वैज्ञानिक बनने की उसकी अभिलाषा बचपन से ही थी। ત્યાર પછી છબી। निम्नलिखित शब्दों का विरुद्धार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। भलाईનું विरुद्धार्थी થશે बुराई। वाक्य बनशे सदैव दूसरों की भलाई सोचनी चाहिए, न कि बुराई। अपनाનું विरुद्धार्थी થશે पराया। वाक्य बनशे हमें हमेशा अपना हित सोचना चाहिए, लेकिन पराया हित भी ध्यान में रखना चाहिए। सी। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लट्टू होना, यानी कि उत्साहित या उत्तेजित होना। वाक्य आवशे जब उसे नौकरी मिली तो वह खुशी से लट्टू हो गया। सिर मारना, यानी कि चिंता करना या परेशान होना। वाक्य बनशे परीक्षा नजदीक आने पर वह सिर मारने लगा। ત્યાર પછી છેડી। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। पहलू 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात तो थोड़े दिन का सुख। वाक्य बनशे तुम चुनावों के समय का यह विकास देखकर खुश हो रहे हो, लेकिन ये तो 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद फिर से वही अंधेरी रात होगी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो यहाँ अर्थ थशे किसी भी कार्य का कारण या कार्य का न होना। वाक्य बनशे अगर कांग्रेस को प्रगति करनी है तो राहुल गांधी का सबसे पहला अध्यक्ष पद से हटाना होगा। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 11। नीचे दिए गए शब्दों की शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ચાલો ઉદાસ, આંગન, ઇન્સાન અને ઉપર, તો અહીંયા આવશે આંગન, ઇન્સાન, ઉદાસ અને ઉપર। સાગર, ઘાટી, બંદી અને મંજિલ, તો ઘાટી, બંદી, મંજિલ અને સાગર। મુસ્કાન, રેગિસ્તાન, વિતાન અને ઘાટી, તો ઘાટી, મુસ્કાન, રેગિસ્તાન અને વિતાન। ત્યાર પછી છે ચોથું દીપક, મજબૂર, महल અને મોસમ, તો આ રીતે આવશે દીપક, મજબૂર, महल અને મોસમ। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, જેના कुल 4 मार्क्स है। पहलू, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी। इस वाक्य में से विशेषण शब्द लिखिए, तो यहाँ जवाब आवशे अमीरी। ત્યાર પછી છે બીજો સવાલ। गंगा पवित्र नदी है। इस वाक्य में से व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए, तो जवाब आवशे गंगा। ત્રીજો, रेखांकित शब्द का विशेषण बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है, तो सत्यवादी अने नीतिवान। वाक्य आवशे वह एक ईमानदार व्यक्ति है जिस पर हमेशा विश्वास किया जा सकता है। चौथुं, कुत्ता वफादार प्राणी है। इस वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा लिखिए, तो जवाब आवशे कुत्ता। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 12 बी। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहलू, सोना कीमती धातु है। वाक्य में से संज्ञा ढूंढिए, तो संज्ञा आवशे सोना। बीजू, हम बाजार जा रहे हैं। वाक्य में से सर्वनाम पहचानिए, तो सर्वनाम छे हम। तुम्हें क्या चाहिए, सर्वनाम पहचानिए, तो जवाब आवशे तुम्हें। दल जा रहा है, संज्ञा ढूंढिए, तो जवाब आवशे विकल्प सी। ત્યાર પછી છે પ્રશ્ન નંબર 13। નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ लिखिए किन्हीं एक। ચાલો તો પહેલો નિબંધ આપણને આપ્યો છે स्वच्छता ही सेवा। तो जुओ, हमारे जीवन में स्वच्छता की आदत होना महत्वपूर्ण है, जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। यह आदत सिर्फ हमारे शरीर के लिए ही नहीं, हमारे घर, शहर और पूरे देश के लिए आवश्यक है। तो अहींया तमे जोई शको छो कि आ सरस मजानो जे आखो निबंध जे छे ते અહીં આપેલો છે। વિડીયો સ્ટોપ કરી પોઝ કરીને તમે આ સમગ્ર નિબંધનો અભ્યાસ કરી શકો છો, અથવા તો આ સમગ્ર સોલ્યુશન જે છે એની PDF પણ તમે મેળવી શકો છો। ત્યાર પછી બીજું છે મેરા દેશ।
तो અહીંયા मेरा देश निबंध આપણને આપેલો જો मेरा देश भारत है तथा हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ विभिन्नता में भी एकता है। इस देश में तरह तरह की बोलियां तथा भाषाएं बोली जाती है। एक देश होने के बावजूद भी यहाँ लगभग हर जाति तथा धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी इनमें भाईचारा है। यह भारत की वर्ष की एकता का प्रतीक है। चलो त्यार पछी आपणे आगळ जोईए त्रीजું मेरा प्रिय पशु। तो मेरा देश भारत है, वह हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है। भारत 15 अगस्त 1937 में अंग्रेजों की तकरीबन 150 साल की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ था। हमारे देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव जैसे कई क्रांतिवीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। गांधी जी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे नेताओं के नेतृत्व में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का चला था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गाथा इतिहास में अमर हो गई। चालो त्यार पछी आपणे आज हिंदी विषयનું જે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025નું આજે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તે આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું મિત્રો આપણે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા 2025ના એક નવા વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। સાથે સાથે આ વિડીયો જે છે તે તમારા તમામ દોસ્તો અને મિત્રો સાથે શેર કરી દેજો, જેથી કરીને તેઓ પણ આ વિડીયો અને પીડીએફ જે છે તેનો અભ્યાસ ખૂબ જ સારી રીતે કરી શકે। તો ચાલો દોસ્તો ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિષયના મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે।